Hello everyone. So tomorrow on the 15th of February 2025 GATE examination is there, GATE DA, right? So all the very best to all of you. I just wanted to come on the video and wish you all the very best. So few things I have noted through the last interaction last few months with the students, and I just wanted to clarify few points before you go into the GATE examination hall. Okay, so first thing is related to mock test. So many of the students might have given 5 mock tests, 10 mock tests, 15 mock tests. Okay, so what might happen is one of the biggest misconception that I see among the students is let's say you score some number of marks or some amount of marks in the mock test, and students tend to take this as a validation standard or some sort of estimation that how much amount of mark they will score in the GATE. Now, according to me, this is a wrong way to see it. The way we prepare a mock test is seeing that how to point out the students that if they have some lag in their preparation, or if their concepts are missing or their concepts are somewhat lagging, then they might see those similar questions in the mock test and they will strengthen their concept. Now, attempting the mock test and attempting the questions of the mock test will indirectly help you in the strengthening of your concept and indirectly actually increase your speed when you actually solve the questions in the GATE examination. So it is definitely helpful in the GATE, but it is not an evaluation standard that you will get this much amount of numbers or this much amount of score in the GATE and you will get this much amount of rank. So one of the biggest problem is students get demotivated at this particular juncture only, and they will enter into the GATE examination as a lost warrior. So that is the very wrong thing. See, every day is the new day and tomorrow is also new day. So when you go into the GATE examination, it will be completely fresh. Don't carry any baggage in the GATE examination. It will be an absolutely fresh attempt. Those 3 hours, how you perform, that only will matter to you. Even if you have performed excellently in the mocks, it will not give any extra edge in those 3 hours. And even if you perform absolutely worse in the mock, it will not give any less marks in the GATE examination. Only those 3 hours will count. So you have to make sure that you have to utilize those 3 hours in a maximum way. Okay. Now, please see it that way and go to the GATE examination with absolutely positive and constructive attitude that you are actually able to utilize those 3 hours in the maximum possible way. So that is one thing, first thing I want to point out, that don't carry any baggage in the GATE examination. These 3 hours will be absolutely new to you. And it might happen, right, in some, even if you are very cricket fan, so it might happen that sometimes a team might score very low, some days it might score very good, but the result of a past days or a last matches will not impact the result of the current day match or a future match, right? So you have to take it that way. It is very important that you don't get demotivated before even seeing the GATE examination paper. The way or the day I have attempted the GATE examination, I was just thinking that I shouldn't have any regret after the GATE examination. Now when the regret will come? See, it might happen that you will see certain question in the GATE examination which is completely new. So, okay, if it is new, you have not studied that topic. Anyway, you were not able to solve those particular questions. So, if you actually worry about the questions that you could not solve and it was anyway out of your league, then you will actually it will have a actually negative impact on the questions that you might have solved, because you have prepared those topics well, you have prepared those concepts well. So go to the GATE examination with this mentality that whatever I have prepared, I should be able to attempt it with complete and maximum amount of accuracy. Okay, so मैं खुद को यही बोलता रहता था कि जो मुझे आता है वो मेरे से छूटना नहीं चाहिए. मतलब मैं लिटरली खुद को यही रिमाइंड कर रहा था. मतलब आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि दूसरे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और आप कभी भी ये जज नहीं कर पाओगे कि भाई कितने मार्क्स होने चाहिए, कितनी रैंक आने के लिए. ये सारी चीज़ें गेट के एग्ज़ाम के टाइम अगर आप सोचने बैठोगे तो आपका माइंड उसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहेगा, और जो आपके सामने है स्क्रीन पे उस पर ध्यान नहीं रहेगा. गेट में आप बैठोगे ना, आपके सामने एक ही चॉइस होगी कि ये जो करंट क्वेश्चन दिख रहा है ना, मुझे अटेम्प्ट करना है या इसको मार्क करके आगे जाना है या थोड़ा टाइम देना है, देखना है आंसर आ रहा है कि नहीं.
तो ये सिर्फ डिस्क्रिशनरी आपको जजमेंट लेना है, वो बहुत सब्जेक्टिव जजमेंट है, लेकिन आपके हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। बाकी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है कि यार मैंने 5 मिनट में इतने क्वेश्चन कर लिए, नहीं मैंने तो स्टैंडर्ड सेट किया था कि इतने करने चाहिए थे, वो आधा घंटा पास हो गया, लेकिन मेरे तो इतने ही क्वेश्चन हुए, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे तो इतने ही हो गए। क्या कर लोगे? जितने भी हुए क्वेश्चन आप उसका कुछ कर पाओगे? और गेट एग्जामिनेशन में आपको वन गो में सारे क्वेश्चन तो दिखने वाले हैं नहीं, एक के बाद एक क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं, ये वही डिसीजन ले सकते हो आप। पिछले आधे घंटे में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और नेक्स्ट आधे घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको सोचने में का कोई फायदा नहीं है। तो डोंट सी, गेट में क्या होगा पता है, इट विल बी टाइम बम, every second will be ticking, because this 3 hours you will have a only window that in this 3 hours you will pour all the efforts that you have done in your gate preparation of the last year, whatever number of months might be. Some might have studied 6 months, 8 months or with whatever months, but this is the only window. एक साल में एक ही विंडो ओपन होती है, और ये 3 घंटे में आपके पास ये सारी चीज़ों सोचने का टाइम और एनर्जी ही नहीं बचेगी। बिकॉज गेट एग्जामिनेशन में एक्चुअली पेपर ही उस तरीके से सेट होगा कि इट विल नॉट बी टू शॉर्ट। ओके, तो गेट के एग्जाम में आप मोस्टली एक क्वेश्चन एक ही बार देखने वाले हो, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितने भी मिनट्स आपने उस क्वेश्चन को दिए, 100% एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम की आप उसी क्वेश्चन को दो। फिर अगर आपको लगता है कि अभी वर्थ नहीं है इस क्वेश्चन को टाइम देना, देन आप मार्क करके आगे बढ़ जाओ, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट बाकी सारी चीज़ें सोचने का कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या रैंक्स आएंगे, दूसरे कैसे परफॉर्म करेंगे, कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचना इज ओनली काउंटर प्रोडक्टिव टू यू, प्लीज़ नो दैट। ओके, एंड प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये क्वेश्चन आप दूसरी बार देखने वाले नहीं हो मोस्ट सर्टेनली। अगर आपने मार्क कर दिया है क्वेश्चन, सपोज 3-4 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए थ्रू आउट द पेपर, और जितने भी क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए, शायद आप उसको रिविजिट करोगे आफ्टर एंड ऑफ द पेपर, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप रिविजिट नहीं करने वाले। तो ये जो अटेम्प्ट है ना, यही फाइनल है। अभी जो अटेम्प्ट करने वाले हो इस क्वेश्चन को, यही फाइनल है। डोंट प्रोकास्टिनेट थिंग्स, बिकॉज आगे एक्चुअली टाइम लिमिटेशन है और आगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए है आपके लिए। तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एक वर्ड पढ़ो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसमें सिली मिस्टेक ना करो, पूरा क्लियरली पढ़ो, एक वर्ड को पढ़ो। 2 बार चाहते हो तो 2 बार पढ़ो, अगर आपको लग रहा है कि आप हरी कर रहे हो तो 2 बार पढ़ो, लेकिन आप पहले क्लियर हो जाओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। बहुत ही ज़रूरी है, आप मेंटली ध्यान रखना कि ये 1 अटेम्प्ट है ये क्वेश्चन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आगे जाके वापस से इस क्वेश्चन को टाइम दोगे, वो आज अभी गलत मार्क कर दिया, वो आगे जाके शायद मैं रिविजिट करूंगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो आंसर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं है। अभी ये क्वेश्चन का टाइम अभी है, इस टाइम को 100% एनर्जी इसी क्वेश्चन में दो। क्लियर हो, एब्सोल्युटली सर्टेन हो जाओ। फिर आपको मार्क करना है तो मार्क करो, वरना फिर क्वेश्चन को मार्क करके आगे जाना है तो आगे मार्क करो, या फिर आंसर को टिक करना है तो आंसर टिक कर दो, वो आपके पर है। बट ये जो मेंटल एफर्ट और आप सोचने की एनर्जी जो लगाते हो, सारी क्वेश्चंस को दो। 65 क्वेश्चन है आपके लिए, 65 क्वेश्चन, एक सिली मिस्टेक। ये ऐसी एग्जामिनेशन है जहाँ पे एक सिली मिस्टेक भी कॉस्ट करती है, तो क्यों आप दूसरी चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करते हो? मुझे पता था 3 घंटे गेट के लाइट के स्प्लिट ऑफ सेकंड में, तो उस लेवल ऑफ मेडिटेटिवनेस आपको लानी पड़ेगी गेट में कि 3 घंटे ऐसे चले गए क्योंकि मैं क्वेश्चन में ही था, मुझे बाकी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि प्रेशर नहीं था, इट वॉज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट वॉज अ प्रेशराइज सिचुएशन। ऑब्वियसली मुझे डर ही लग रहा था गेट में, बट इट वॉज, आई कुडंट अफोर्ड टू डू इट, आई कुडंट अफोर्ड टू थिंक एनीथिंग एल्स, बिकॉज मेरे पास एक ही विंडो थी 3 घंटे की, और 65 क्वेश्चन थे। मुझे हर एक क्वेश्चन को 100% देना था मेरा। और आप मेरी बात सुनो, मैं घर पे आके आया ना,
लिटरली मुझे लगा था, मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकाले होंगे कि मुझे लगा था कि यार मैं इसको करेक्ट कर सकता था, और मेरे लिए ये रिग्रेट रह गया। आप सोचो, मेरी रैंक आई है फिर भी मुझे रिग्रेट रह गया है गेट में कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए जो मैं सही कर सकता था। तो अगर आप वो मेंटालिटी से जाते हो कि अब मेरे से होने ही वाला नहीं है, अगर आप कैजुअली लेते हो तो आप कितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे। मतलब दिक्कत ये है कि आपने पढ़ा है पूरे साल, लेकिन जस्ट बिकॉज आप पैनिक में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, या फिर आपने मॉक में कम स्कोर देख लिए और आपने गेट में 100% नहीं दिया ना, इतना गंदा रिग्रेट होने वाला है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं यही मेक श्योर करना चाहता हूँ इस टाइम पीरियड में। मुझे खुद को रिग्रेट रह गया था गेट के एग्जाम के बाद, बताओ, कि ये 5 क्वेश्चन मैं सही कर सकता था क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था वो टॉपिक्स। तो अगर आप 100% देने की मेंटालिटी से नहीं जाओगे गेट में, तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें आपको गेट के एग्जाम के बाद लगेगा कि यार मुझे इसमें दे दिया होता तो ये करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है कि इसमें सिली मिस्टेक ना करो, अपना 100% दो और 100% दे के फिर आगे चले जाओ, बस उतना ही है गेम। लेकिन द थिंग इज कि जो माहौल बन जाता है गेट एग्जामिनेशन का, लोग एक्स्ट्रा चीज़ों को सोचने लगते हैं, तो उसी में उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, भले ही उन्होंने पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। इट शुड नॉट हैपन। ये 3 घंटे हैं, 3 घंटे अपना 100% दे सको, वही कर सकते हो एट द बेस्ट, और वही करना चाहिए। उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश की कि क्या रैंक आएगा, मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं, कितने स्कोर आएगी, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने टाइम पीरियड में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने ही चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर मैं ज़्यादा सोचने लगी ना, आप क्वेश्चन को 100% नहीं दे पाओगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है। कब रैंक आने वाली है, कितनी रैंक आने वाली है, क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा कि नहीं, दूसरे लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके बस में नहीं है। जो बस में है ना, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, वही आपके बस में है, और आपको उसको सॉल्व करके, आपको 2 चॉइस है आपके पास। एक तो करेक्टली एक्यूरेटली सॉल्व करो, या तो थोड़ा ट्राई करो और देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं, या तो इसको मार्क करके आगे चले जाओ। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो बाद में डिसीजन लो कि अभी उसको और टाइम और एनर्जी देनी है कि नहीं इस क्वेश्चन को। ये सब्जेक्टिव जजमेंट है, सिर्फ आप ही ले पाओगे। ओके, तो ये 3 आवर को आप एक तरीके से वही सोच लो कि ये 3 आवर को आपको पूरा खेलना है ना। 65 गेंद आ रही है आपके पास, ऐसा सोचना है तो ऐसा सोच लो और कोई गुगली भी हो सकती है, कोई बाउंसर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बट हर एक उसको 100% देना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 99 पे आ गया और एक गेंद मैंने कैजुअली खेल दी तो उस गेंद पे आउट भी हो सकती हूँ। तो दैट इज़ द पॉइंट। हर एक चीज़ को 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ इसलिए मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपने, ये मेंटालिटी लेके जाना कि वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड, जो कंसेप्ट मेरे स्ट्रांग है, इफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम देम आई शुड बी एबल टू अटेम्प्ट विद गुड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी फुल्ली। द क्वेश्चंस आई डोंट नो एनीवे, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट इफ इट इज़ वेरी न्यू टू यू। कुछ ऐसी टर्म्स ही दे दी क्वेश्चन में। अब आप हो सकता है यू माइट सी सर्टेन क्वेश्चन इन द गेम विच इज़ वेरी न्यू टू यू, आपको लगेगा, आपको अंदर से लग जाएगा कि दिस इज नॉट यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, देन इट्स अप टू यू, मार्क दिस क्वेश्चन एंड गो अहेड, बट डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने एक ग्रो में एक पूरा पेपर तो देख ही नहीं लिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नहीं होंगे। आप एक बार एक क्वेश्चन को देखोगे तभी पता चलेगा। तो अभी जो हो रहा है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, कंसेप्ट पढ़े है कि नहीं, मैं इसको उसी को 100% आपको देना है। ओके, तो उस मेंटालिटी से जाना कि वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड, ये अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ये जो गेट के 3 आवर है ना, ये बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ये सेम पेपर मैं गेट के बाद दे दूँ ना आपको, और आपको सॉल्व करने को बोलूँ, आपके नंबर कम आने चाहिए और गेट में जो नंबर है वो ज़्यादा आने चाहिए, भले ही ये पेपर गेट में आप पहली बार देख रहे हो। उस मेंटालिटी से जाना, उस मेंटालिटी से जाना, फिर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें इतनी वर्थलेस है। बाकी चीज़ें सोचना है क्या कि यार दूसरे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्क क्या आएगा, ये सारी चीज़ें, टाइम ही नहीं बचेगा गेट में दे सोचने का, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो विद दिस वेरी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। जो ये एटीट्यूड ही डिफेंस करेगा
गेट में। मैंने जैसा कहा कि अभी तक कितने स्कोर आए मॉक्स में, ज़्यादा आए कम आए, ना तो वो 1 मार्क बढ़ाने वाले हैं गेट एग्जामिनेशन में, ना तो 1 मार्क घटाने वाले। वो 3 आवर में आपका अप्रोच, एटीट्यूड, मेंटालिटी कितनी रहेगी, वही डिटरमाइन करेगा कि आपका 100% जाएगा वो गेट एग्जामिनेशन में, या 50% जाएगा, या 70% जाएगा। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट होगा अगर आपका 100 से 99% भी गया। 100% आपका बेस्ट जाना चाहिए वो 3 घंटे में, बस उतना आपको इंश्योर करना है। बस उसी मेंटालिटी से आपको जाना है और खुद को रिमाइंड करते रहना है ये मेंटालिटी। 3 आवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें फाड़ के क्वेश्चन पढ़ना, उसी क्वेश्चन को आप 100% दे पाओगे जो आपके स्क्रीन पे है, उसी में अपना ध्यान लगाना और एक डिसीजन लेना है आपको कि अभी इसको मार्क करके आगे जाना है, अटेम्प्ट करना है, आंसर अटेम्प्ट करनी है, या फिर थोड़ा टाइम देके इसको सॉल्व करना है। और फिर आगे जाके आप डिसाइड कर सकोगे कि हाँ, अगर सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा और टाइम देना है, या फिर मार्क करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि आप कोई बैगेज ना रखो, और जो आपके जो 3 आवर है ना, लिटरली वो टाइम ही टिक हो रहा है, आपका टाइम ही टिक हो रहा है। लिटरली जैसे क्लॉक जा रहे हैं ना, टाइम ही टिक हो रहा है, लेकिन क्लॉक पे ध्यान मत देते रहना, वो तो टिक होने ही वाली है। अगर ध्यान दो नहीं दो कोई मतलब नहीं है। ध्यान तो आप क्वेश्चन में ही दे पाओगे, तो क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, उसी क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे जो आपको स्क्रीन पे है। पीछे कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आपको सोचना नहीं है। करंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक पल में, वो 3 आवर्स में बहुत ज़्यादा। ओके, और वो ये जो आपका एटीट्यूड होगा ना मेंटली, वही डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर आप हारे हुए एटीट्यूड से जाओगे कि यार मेरा तो सबके तो इतने स्कोर आया है, पीपल आर स्कोरिंग दिस मच, व्हाट आई विल स्कोरिंग, दे देते हैं गेट एग्जामिनेशन, क्या कर पाओगे आप? देना ही पड़ेगा आपको गेट एग्जामिनेशन, क्या कर पाओगे आप? तो देना ही पड़ेगा। क्या मतलब जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ ना। जिनके मॉक में 80 आए हैं, 90 आए हैं, उनको 1 मार्क का फायदा नहीं होने वाला है गेट में। उनको आपके 20 आए हैं या 15 आए हैं, आपको 1 मार्क का नुकसान नहीं होने वाला। जैसा मैंने कहा, एक नए दिन पे नई गेम ही है ना। कोई पास्ट परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करता। इसी एग्जाम में आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, अपना 100% दे पा रहे हो, वही मैटर करेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपने 100% नहीं दिया ना, तो गंदा रिग्रेट होगा। आप फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड से, एटलीस्ट एटीट्यूड तो फुल ऑन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड से ही जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गो विद दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड, दैट you are actually determined to give your 100%. ओके, गो ऑन विद दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। एक तो बैगेज कैरी मत करना, मॉक टेस्ट कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी डिटरमाइन नहीं करने वाली है गेट एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही एक एक वर्ड को पढ़ना है आपको, एक एक वर्ड को, है ना, कि ना तो आप कोई वर्ड मिक्स कर जाओ, एक पूरी कंप्लीट क्लैरिटी से समझ लो कि भाई क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि मैं थोड़ा हास्ट कर रहा हूँ, या मैं मतलब ओवर एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और मैं जल्दी जल्दी में जा रहा हूँ, तो 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को। आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार समझो क्या कहना चाहता है, फिर इसको अटेम्प्ट, और उसी मोमेंट पे जिस क्वेश्चन पे हो उसी को आप एफर्ट दे पाओगे। कितने पास्ट में अटेम्प्ट हुए, आपको 1 घंटे बाद रीइवेल्युएट करने नहीं बैठना है कि मेरी गेट एग्जाम कैसी जा रही है 1.5 घंटे के एग्जाम के बाद, ओ इतने क्वेश्चन हो गए, मेरी गेट एग्जाम तो अच्छी जा रही है। ये सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। और अगर ये सारी चीज़ों का टाइम वेस्ट करने जाओगे ना, तो क्वेश्चन को आप टाइम नहीं दे पाओगे और एनर्जी नहीं दे पाओगे, ये रिग्रेट रहेगा आपके लिए। तो तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि ये मेंटालिटी से जाना, कि आपका 100% पूरा पोर कर देना है 3 घंटे में। जितना भी पूरे साल में या जितने भी मंथ्स आपने प्रिपेयर किया है, कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं, सारी चीज़ें पोर कर देना है गेट में। कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं रहनी चाहिए ताकि आपको गेट के बाद रिग्रेट रहे। ये आपके लिए एक विंडो है, साल में एक विंडो ओपन होती है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, है ना। जस्ट वही है कि मेंटली आप अच्छे रहो, मेंटली बैलेंस रहो, कंपोज रहो, फोकस रहो, अपना अटेंशन एकदम क्लियर रखो। वो 3 घंटे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें कम ज़रूरी है कि कितना रिवाइज कर लिया, इतना ज़्यादा कर लोगे। आपने पूरे साल मेहनत तो की ही है, जितने भी मैंने मेहनत की है,
है ना। लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट है इस पर्टिकुलर पीरियड में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो एटीट्यूड है, मेंटल एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड से आप गेट एग्जामिनेशन में जाओगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, और हमारी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं कि यू विल परफॉर्म एक्सेलेंट इन द गेट एग्जामिनेशन, and we really wish for all of you that all of you will excel in the GATE examination, and you will achieve the shining score. So all the very best, and let's see you in the next video after the GATE examination. See you. Bye.